1 डिवाइडेड बाय 4 तो कौन बोलता है? गूगल तो गूगल बराबर ही होगा। आदमी लोग गलत हो सकते हैं, गूगल गलत नहीं होगा। गलत उधर तो मरता था तो जिंदा है वो रोबोट पैसा मिलेगा अगर गूगल का गलती निकालेगा Have we started the मिलियंस session? मध्ये Read out the session. फुल टाइम जॉब कर बहुत लोग वही जॉब करते हैं। गूगल का गलती तो कर देगा। So I'm starting my screen share again, and we'll continue from rotating. Is the screen visible? Yes. Yes. तो yes, as you were asking, कंट्रोल Z का ऑप्शन है या नहीं? Yes, इसमें कंट्रोल Z का ऑप्शन है। यहाँ पे आपको undo का ऑप्शन रहेगा। If you can see here, and it also shows you what last 4 or 5 functions that you did. So you interact. You can just select till the level and do it. Also, you have a redo option here. So also, तो आपको you can do it accordingly. Right. So going on to rotation. So if I go to align, interactive rotate. What I'm going to do is my section mandible retain. My move along entity is my reposition mandible cast, right? अभी ये जो green point आप देख रहे हैं, center point, green sharp point here in the center, that's basically your point of rotation. So you can move this point of rotation and keep it where you want. Basically, that forms your axis of rotation. So now I've moved it behind posteriorly. So if you see, okay. Mandible, right? हाँ, तो आप जो ये देख सकते हैं, the center point, basically this forms your point of rotation. So with respect to that point, the mandible will move.
suppose if I want to shift my center of rotation to somewhere posteriorly, first let me reset this. Yeah, so reset that. Suppose I want to move it my point of rotation, say I want to move it somewhere here. So now with फेल respect, कर दी मैंने. so with respect to that point, अगर आपको ये movement करना है, तो अच्छा ठीक है. shifting पीछे, my axis of rotation. Right now, if you see now this point has become my axis of rotation, and with respect to that, ये अभी mandible move कर पाएंगे अपन. Right? Again, even in this also you have an option called as enable snapping. अगर आपको पता है कि आपको mandible को कितने डिग्री से रोटेट करना है, तो आप enable snapping का ऑप्शन चेक कर सकते हैं, and you can set in the degree or the value, and then accordingly do that. Right? So now we have to rotate the mandible with respect to the maxilla. Right? So मैं कास्ट को ट्रांसपेरेंट कर लेती हूँ so that we don't have to see this and visualization becomes easier for us. So what I've done is I have made the cast transparent, so you know it's better, easier to visualize just the tooth relation between the maxilla and mandible. How I did that, I just clicked onto the cast. वहाँ पे एक transparency करके ऑप्शन आता है, राइट क्लिक करने पे आप राइट क्लिक करके ट्रांसपेरेंसी में जाके उसको हाई मीडियम लो based on your requirement कर सकते हैं. Right now if transparency is high, right now I'm gonna rotate it lightly. I think we'll have to move the mandible behind. थोड़ा सा translate करना पड़ेगा पीछे की तरफ. ठीक है. अब कॉन्डाइल का ऑटो रोटेशन पहले नहीं करेंगे परिणीता? हाँ नहीं मैम, आप पहले कॉन्डाइल सेट करना है आपको कि पहले बाइट सेट करना है? मैम इस सिमुलेशन में मैग्युलरी एडवांसमेंट डिमिनिश हो गया है, ध्यान से देखिए. हाँ, मैक्सिलरी 5 मिलीमीटर एडवांसमेंट हो चुका है. नहीं, डिमिनिश हो गया इसमें नहीं दिख रहा. अच्छा. हाँ, तभी वो पीछे जो है क्रॉस बाइट आ रहा है. एक सेकंड मैं कंट्रोल Z कर रही हूँ. जो मैंने मूवमेंट किया था, आई एम जस्ट अनडूइंग दैट. So what I'm now doing is I'm just resetting the entire maxilla to its mandible to its original position. So ये तो दिस इज बेसिकली, आप नीचे अगर देखोगे तो एक लॉगर करके ऑप्शन रहेगा. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने कौन से ऑपरेशंस वो अंडू कर रहा है या आपने कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं. सो इफ यू स्क्रॉल दिस बार,
up and down, you can see all the steps that you have performed from, right from copying the part to and till you completed the project. Each step is logged in here in this logger option. Nita, we can't see your screen. हाँ, आ गया, वापस आ गया. आ गया, हाँ. तो ये लॉगर ऑप्शन की बात कर रही थी. ये जो नीचे वाला लॉगर ऑप्शन है, ये आपको सारे स्टेप्स बताता है बेसिकली आपने एक प्रोजेक्ट में क्या क्या परफॉर्म किया है, राइट फ्रॉम स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट टिल यू एंड द प्रोजेक्ट. सो ईच स्टेप इज लॉग्ड ऑन हियर. नहीं दिख रहा. स्क्रीन फिर चला गया. एक सेकंड मैम, वो लोड हो रहा है स्क्रीन, अच्छा. तो इसीलिए. फाइल्स एक्चुअली काफी हैवी है इसकी, तो द प्रोजेक्ट इज टेकिंग टाइम फॉर दैट. आई थिंक अभी आपको स्क्रीन आया रहेगा. इज इट विजिबल नाउ? Yes, ma'am. Yeah. So I've reset the mandible to its original. Right. So we have translated the maxilla. First, ma'am, do you want to set the condylar region? Is it? Maxillary advancement हो गया 5 millimeters. हाँ, maxillary advancement पे ही है ये. तो मैं आपको अगर चाहिए तो we can compare our previous and our repositioned one. So we switch on this function. तो हमारा जो लोअर सेक्शन है यहाँ का, let's just change its color to pink. Okay, so how do we change the color? To change the color, we'll have to go to the we select the entity or the part. जैसे ही हम part select करते हैं, आपको एक properties window जो नीचे है, उसमें वो वाला part highlighted हो जाता है. तो if I select the other part, तो अभी जैसे upper section, तो अब जैसे जो part select करेंगे, उसके parameters, उसके functions और उसके जो भी बेसिकली इसके कंपोनेंट्स है वो आपको दिख जाते हैं. जैसे उसका डायमेंशंस हो गया, उसका वॉल्यूम हो गया, उसके कलर्स, उसका विजुअलाइजेशन, हाउ मेनी ट्रायंगल्स द पार्ट इज मेड ऑफ. बेसिकली आपको सारा डेटा रिलेटेड टू दैट पार्ट ये प्रॉपर्टीज विंडो में दिख जाएगा. उसमें अगर आप कलर ये बॉक्स को ये स्क्वायर पे क्लिक करेंगे तो आपको पैलेट का ऑप्शन आ जाएगा, कलर पैलेट का, एंड यू कैन गो देयर एंड जस्ट सिलेक्ट द कलर यू वांट टू. सो व्हाट आई हैव नाउ डन इज लोअर सेक्शन ऑफ मैक्सिला जो हमने डुप्लीकेट करा था उसको हमने सिलेक्ट कर लिया. एंड नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल गो टू अलाइन इंटरैक्टिव ट्रांसलेट ऑप्शन से मैं इसको ट्रांसपेरेंट कर रही हूँ, नए वाले को जो डुप्लीकेट करा है हमने उसको. so that we can see the difference between the previous was in blue. So now when I'm going to move it, हमको difference दिखना चाहिए करके. I'm just doing that. First, let me set my angle correctly. Right.
right? So my move along entity will be my reposition maxilla cast. I've chosen the option of enable snapping, and now I'll just move this forward. तो आपको ये 5 mm का difference अभी दिख रहा है between the blue and the pink. So what I'm also doing is just for visualization, I'm hiding all the mandibular sections. I'm closing the option of the translate, and now we can visualize the difference in the tooth placement. The pink highlights the new position, the blue is your previous position. So I think maxillary translate tak now we are clear, right? Now once we have Yes. now once you've repositioned our maxilla, I will now switch on our mandible key sections, right? So this is how it is with reference to the maxilla. ये अभी फिलहाल ऐसे आ रहा है. So after the maxillary advancement, we have to set the condyle, right? एडवांसमेंट पर रिवर्ट हो गया वो. Huh? Sorry. kindly you show me the profile view please. ठीक है clear. Right. So yeah, so once you're done with the advancement, now do we do the mandibular movement of placement, or do we first do the condyle? ये मैम आपको मुझे इनपुट देना पड़ेगा, बिकॉज आप जैसे प्रोसेसेस करेंगे फ्यूचर में, मैं उसी प्रोसेस फ्लो को ध्यान में रखते हुए आपका ये करूंगी. यस मैम. कॉन्डाइलर रोटेशन इसलिए देखना है कि कॉन्डाइलर रोटेशन के बाद कई सिनेरियो में आगे कुछ करने की मैंडिबल में जरूरत नहीं पड़ती है. ओके, सो मैम कॉन्डाइलर इसलिए रोटेशन बस चेक करना है कि कॉन्डाइलर रोटेशन से क्या फर्क पड़ रहा है. बट मूवमेंट करना है तो पहले मैंडिबल का मूवमेंट होगा, उसके बाद कॉन्डाइल फिर फाइनली ऑटो रोटेट होगा. दिस इज जस्ट टू चेक कि ऑटो रोटेशन से क्या चेंजेस आ रहे हैं. ओके, सो मैम बाय कॉन्डाइलर ऑटो रोटेशन कैन यू लेट मी नो कि ये कौन से एक्सिस में होगा, बिकॉज ऑटो रोटेट यहाँ पे कुछ होगा नहीं, एवरीथिंग हैज टू बी गिवन इनपुटेड मैन्युअली. तो अगर आप मुझे बता सके कि कौन से एंगल में या कौन से डायरेक्शन में आपको कॉन्डाइल रोटेट करना है, तो मैं वो सिमुलेट कर दूंगी यहाँ पे. ओके, देन डोंट डू इट नाउ, we'll do it finally once the mandibular setback or rotation has been done. ठीक है, तो इसको मैंडिबल को सेटबैक करना है पहले. आई थिंक एक बार सेटबैक अब जरूरत तो नहीं लग रही है, तो 5 मिलीमीटर्स का है वहां पे डिफरेंस. हाँ एग्जैक्टली, मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे ये बाइट परफेक्ट ही आ रही है. हाँ, बस रोटेट करना है. राइट, आई विल रोटेट दिस. मैं फ्रंट व्यू से रोटेट कर रही हूँ. So I will go to align, interactive rotate section again. I'm keeping chin as the axis. Rotation. मैंने बहुत स्लाइट रोटेशन किया है बिकॉज आई डोंट थिंक ज्यादा जरूरत थी. तो इफ यू वांट टू सी यू कैन चेक फ्रॉम द बॉटम व्यू. So if I see ekdam bottom view, this looks fine to me from bottom. Let's just check the side profiles also.
This seems fine. Do you want any changes, ma'am? How will we get the bite? The bite is not coming now. ये आई थिंक इसको अगर थोड़ा पीछे किया तो So can we check and see how much or movement is required to get the bite, or we have to put exact movement? तो बाइट अगर आपको चाहिए तो आई कैन सिमुलेट इट. तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन गो टू अगेन अलाइन इंटरैक्टिव रोटेट एंड मैं इसको जो हमने ये रीसेट किया है उसको मैं वापस से डुप्लीकेट कर रही हूँ. राइट, आई जस्ट सिलेक्ट माय डुप्लीकेट एज माय एंटिटी एंड मैं सेंटर ऑफ रोटेशन इसके ये वाले टूथ को कर दूंगी and then you can move it up and down to understand इसका बाइट कैसे हो रहा है. So something like this you'll get. Bite तो अच्छा आ रहा है. हाँ, आपको उसको सिमुलेट करना पड़ेगा मैम ये खुद से, मतलब यू हैव टू कीप दिस एज ए हाँ. सेंटर ऑफ रोटेशन एंड देन यू हैव टू कीप इट रोटेटिंग, तो आप ठीक उसको है, देख पाएंगे. ठीक है. तो देन आई थिंक जो हमने सेट किया था वो ठीक ही था, राइट? हाँ. हाँ, तो उसको वैसे ही रखते हैं एंड दैट्स द रीजन आई क्रिएटेड दिस डुप्लीकेट कॉपी सो दैट वी कैन जस्ट आई एम जस्ट गोइंग टू राइट दिस एज अ reference copy for byte movement. Again, a suggestion to always keep writing the correct like renaming your files so that आपको फिर बाद में confusion ना हो, because जैसे जैसे आपका project बढ़ते जाएगा वैसे वैसे files बढ़ते जाएंगे. And what Threematic does is आप जो भी file duplicate करेंगे ना उसके आगे वो बस underscore duplicate ये word auto generate करेगा. तो अगर मैं upper section of maxilla को फिर से duplicate करती हूँ तो अपर सेक्शन ऑफ मैक्सिला डुप्लीकेट ऐसे करके फाइल का वो रीनेम करेगा. सो आपके रेफरेंस के हिसाब से अगर आप करेंगे तो बेटर होगा. सो राइट नाउ व्हाट आई डू इज लोअर सेक्शन ऑफ मैक्सिला आई रीनेम दिस आल्सो एज 5 mm advancement, right? Then I'll also section mandible retain rotated right? So right, so now that we are satisfied with our simulation, right, what we'll do is, ma'am, is there any changes you want to do in the simulation or No, this it's seems fine. it's fine, right? So अभी हम लोग जाएंगे हमारा फाइनल स्टेप जो होता है अपना स्प्लिंट क्रिएशन, और स्प्लिंट हमेशा कास्ट के ऊपर बनता है. सो नाउ रोटेशन कितना किया ये कैसे पता चलेगा? यस मैम, सो मैं उसी के लिए कर रही हूँ. रोटेशन के लिए आपको अगर वही होता है जनरली, तो राइट नाउ आई डिड नॉट नोट दिस बट जनरली हम लोग क्या करते हैं, आपका जो जैसे मैंने इसके लिए बताया था अलाइन में ट्रांसलेट रोटेट मैं जो ओरिजिनल वाला था वो वाला फाइल वापस डुप्लीकेट कर रही हूँ और उसका कलर थोड़ा चेंज कर रही हूँ. तो लेट दैट कलर बी से क्रीमिश. तो आपको डिफरेंस दिखेगा, जो क्रीम है वो ओरिजिनल पोजीशन था और जो ब्लू है वो नया पोजीशन है. सो जब ये जो डुप्लीकेट है मैं इसको इंटरैक्टिव रोटेट कर रही हूँ, so again my moment of rotation becomes my chain. Right, so
Right. So what I'll do is, what I want you to observe is, I want you to observe work area में जो left topmost corner है वहाँ पे. So when I rotate this, आपको यहाँ पे एक degree दिखी? This is like by 1 degree, 2 degree. So you have to notice here. तो आपको समझेगा कि आपने इसको कितने डिग्री से मूव किया है. तो अगर मैं इसको ऐसे रखती हूँ और मैं I have a small question to ask. yes, Why are we keeping the moment of rotation at chin when we expect the rotation about the tooth region or the posterior region? Why are we keeping the moment of rotation at chin? so what I would want to add is, generally when we do the software, this is over the period of time that we have come to know that अगर आपको tooth का movement भी चाहिए, I have to set the tooth, right? So when I set the tooth, मेरा नीचे का position भी move होगा ही, right? When I Definitely वो तो होगा ही, लेकिन जब yes. हम सर्जरी में मूव करेंगे हाँ, तो सर्जरी में मूवमेंट के टाइम पे देयर विल बी अ मूवमेंट अबाउट द पोस्टीरियर रीजन ऑफ द सेगमेंटेड मैंडिबल, राइट? understood. We will be manipulating at the chin, but we will not be putting any rotation about the chin, right? The Right. whole rotation that will come is at the posterior end of the segment. Am I right, ma'am? Divya ma'am? हाँ हाँ बिल्कुल Right. है ना? तो keeping मतलब the हम क्यों कर रहे हैं? क्या हमें लग रहा है कि फेशियल एसिमेट्री है, हम एसिमेट्री करेक्शन कर रहे हैं? हाँ, क्या पॉइंट क्या है? मतलब हमें तो पोस्टीरियर मोलर के रोटेशन से काम चल रहा था. हमें मोलर के अबाउट रोटेशन चाहिए, हमें बेसिकली चिन के अबाउट रोटेशन नहीं चाहिए कि थोड़ा चिन में है एसिमेट्री, दैट्स व्हाई वी वांट टू डू. No. So ma'am, what happens is, अगर मैं सेम चीज मोलर के यहाँ पे रखूं, like right now I'm fixing as my point of rotation at the molar. जैसे अगर आपने देखा रहेगा जब बाइट सिमुलेट करना था तो मैंने मोलर पे ही रखा था एंड मैंने बाइट सिमुलेट करके आपको दिखाया था, right? So if you see, when I'm rotating about the same axis of this, मेरा सेम रोटेशन ही आ रहा है. तो आपको, बिकॉज माई एंगल इज सेम, आप जो एक्सिस यूज करेंगे ना सॉफ्टवेयर में, आई एम यूजिंग द ग्रीन एक्सिस. मैंने चिन पे रख के भी ग्रीन एक्सिस ही यूज किया था, अगर आप देखेंगे तो. अगर इफ यू चेंज द मूवमेंट और अगर आपका एक्सिस चेंज हो रहा है तो आपका मूवमेंट पे इम्पैक्ट पड़ेगा. बट अगर आपके एक्सिस कांस्टेंट है, सो नाउ सपोज अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाती हूँ और मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट सिस्टम कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज किया है, तो आप देख रहे हैं मेरा ये चेंज हो रहा है, कलर्स चेंज हो रहे हैं, आगे पीछे हो रहे हैं, इफ यू कैन सी. So if I change the axis, then my angle will be impacted when I move it to different points. Otherwise, it remains constant, irrespective मैं कहाँ पे भी रखूँ, वैसा. So it will give me the same simulation. The software gave me the same simulation if I kept at the even if I kept it at the chin or at the molar. But यही अगर मैं प्रोफाइल व्यू से करूँ और मैं सेम चीज को आपके टूथ के यहाँ पे रखूँ, like the molar tooth, right? And now when I move, आप देखेंगे ये मुझे up down movement देगा instead of a flat rotation. So I'm just resetting this point here, and what you will notice is it's giving me a up down movement. मैं just reset कर रही हूँ उसको. राइट, अब रीसेट इट. और मैं अभी इसको मूव कर रही हूँ तो ये मुझे अप डाउन मूवमेंट दे रहा है इंस्टेड ऑफ द फ्लैट मूवमेंट. एग्जैक्टली मैम, हमको दोनों चीजें एनालाइज करनी है. हमको ये भी देखना है कि अगर हम मोलर को एज अ रोटेशन पॉइंट ऑफ रोटेशन रखते हैं तो सैजिटल प्लेन में अपना कितना एंगुलर मूवमेंट देना है मैंडिबल को फॉर अ बाइट टू बी अचीव्ड. एंड अगर हम चिन पे इसको पॉइंट ऑफ रोटेशन रखना है तो साइड टू साइड हमें जो एसिमेट्री है वो करेक्ट कर सकते हैं. एम आई राइट मैम? राइट. तो सर आपको वही करना पड़ेगा. सो विद ईच व्यू यू विल हैव टू डू इट विद रिस्पेक्ट टू ईच व्यू. आपको हर बार व्यू, जैसे हम व्यू चेंज करके ही करते हैं इसको, जैसे मैंने आपको पहले बताया फॉर बाइट मैंने आपको तुरंत इमीडिएटली आई टुक द प्रोफाइल व्यू एंड आई डिड इट. तो क्या होता है उससे आपको सैजिटल व्यू वाला सेक्शन मिल जाता है, राइट? एंड चिन को देखने के लिए आपको बॉटम व्यू लेना पड़ेगा. एंड विद रिस्पेक्ट टू द बॉटम व्यू अगेन यू कैन सेट
ये तो सेम पोजीशन पे जब मैं ग्रीन एक्सिस को ही मूव कर रही हूँ तो आप देख सकते हैं मुझे एक अलग मूवमेंट दिख रहा है, मुझे एक फ्रंट एंड बैक मूवमेंट दिख रहा है इंस्टेड ऑफ टॉप टू बॉटम। सो जी, सर दिस इज एंटायरली बेस्ड ऑन योर व्यू, आप कौन सा व्यू चूज करते हैं मूवमेंट के लिए, तो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन वो व्यू को आपका ये कंसिडर करेगा एज अ प्लेन, एंड बेस्ड ऑन दैट प्लेन इट विल डू द मूवमेंट। right. So it depends basically upon the degree of discrepancy Yes. antero-posteriorly, superior, Yes. inferiorly, and mediolaterally. एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। मैम एक हाँ क्वेश्चन था राइट। मैम, जो लेटरल प्रोफाइल से आपने रोटेट किया हाँ तो अगर ओवर रोटेट भी हो सकता है क्या? मैक्सिलरी टीथ ओवरलैप हाँ हो रहे हैं तो वो पता नहीं चल रहा है, तो वो कैसे नहीं, पता चलेगा सो यू हैव अगर टू ओवर जूम इन, रोटेट हो रहे हैं? यू विल हैव टू जूम इन एंड लुक इनटू दैट। इसलिए मैंने बोला ना कि हम एक प्रोफाइल को ट्रांसपेरेंट करेंगे, एक प्रोफाइल को ओपेक करेंगे, जैसे हम करते हैं। तो क्या होता है ना, जब अगर मेरा सपोज मैक्सिलरी टूथ ट्रांसपेरेंट है तो मुझे समझ में आता है कि उसमें से ब्लू मतलब इन डिफरेंट कलर्स, सो आई अंडरस्टैंड हाउ मच ब्लू इज सीपिंग इनटू द पिंक सेक्शन, एंड देन दैट इज हाउ वी डिफरेंशिएट बिटवीन द टू, कि ये ओवर रोटेट हो रहा है या दिस इज जस्ट ओवरलैपिंग और दिस इज राइट। दैट्स हाउ वी डिफरेंशिएट। ओके, हम रेस्ट्रिक्शन नहीं कर सकते, हम ओवर रोटेट भी हो सकता है, हमें हाँ चेक करना पड़ेगा। yes yes you will have to keep checking after each step। तो अगर that's what, अगर आपको रेस्ट्रिक्शन करना है तो आपको वो पहले से एंगल पता होना चाहिए। सो इफ यू I'm just control seeing this, so if you know कि आपको 2 डिग्री से मूव करना है तब आप इसको enable snapping से 2 डिग्री पे सेट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको डर लग रहा है कि ओवर रोटेट हो जाएगा तो आई थिंक आप एक 1 डिग्री का एंगल सेट कर सकते हैं, एंड देन आफ्टर ईच 1 डिग्री यू विल हैव टू कीप मूविंग फर्दर, तो आपको एग्जैक्ट पता चलते रहेगा कि कैसे क्या हो रहा है। ओके, Yeah. So I'm now just closing all the other files and I'm just going to switch on our cast, क्योंकि कास्ट को मैंने साथ में ही सिमुलेट किया था तो हमारे कास्ट हमारे सिमुलेटेड पोजीशन पे ही है। So this is my and reposition maxilla cast, this is my reposition mandible cast, just to show you कि हम वो it has taken the same angle as a reposition। मैंने अब ये चालू किए हैं दोनों ब्लू एंड पिंक, तो आप देख सकते हैं it has taken the simulation correctly। Now I'm again switching these, oh basically hiding them, right? Now we have our mask। अभी हमको इसके लिए बनाना है स्प्लिंट, तो स्प्लिंट क्रिएट करने के लिए हमको एक I'll just opaque this first, right? So basically splint we'll have to draw right from our own set। So for drawing what you can do is you have two options, one is your sketch, the other is your design। So सबसे पहले हम लोग डिजाइन के ऑप्शंस यूज करने के लिए हम लोग सबसे पहले स्केच करेंगे, राइट? सो what we'll do now is we'll first go to new sketch option। so I go to sketch new, तो मैं न्यू स्केच, जैसे ही मैं न्यू स्केच सिलेक्ट करती हूँ, अब जैसे मैंने कहा था आपके जो भी फंक्शंस होते हैं वो प्रॉपर्टीज विंडो या ऑपरेशंस विंडो में दिखाई देते हैं। सो मैंने न्यू स्केच सिलेक्ट किया, मेथड ओरिएंटेशन में आपको आता है मेथड। सो व्हेन आई गो टू मेथड, अगर आप यहाँ पे कॉर्नर में देखेंगे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू रहता है, I click on to the drop down function, you will see there are multiple methods of creating a sketch, right? There's something called as fit plane, mid plane, right? So I'll explain to you mid plane and others when we do the mirroring option, but first let's do आज fit plane और 3 points देखते हैं। So I'm first doing using 3 points, so I have point 1, point 2, point 3। point 1 let me mark हमारा स्प्लिंट, ओके कमिंग बैक टू दिस, हमारा स्प्लिंट कौन से इसमें होता है, बिटवीन इट हैज टू बी बिटवीन द मैक्सिला एंड मैंडिबल, इट हैज टू बेसिकली टेक द इंप्रेशंस ऑफ द टूथ। इसका मतलब मेरा स्केच का प्लेन होगा इन बिटवीन द मैक्सिला एंड मैंडिबल, so I'll have to accordingly give it points। so my point 1 will be let's say somewhere here। when I select the tooth as my point, what it gives me is it gives me options of selecting triangle, node, edge or surface, so you can select as per you want। so what does triangle, node, edge and surface mean? Basically जैसे मैंने कहा था आपका हर एक पार्ट बहुत सारे ट्राइंगल्स से बना हुआ है, तो वो क्या मुझे डिपेक्ट कर रहा है कि for this
point that you're selecting, should it take the triangle node, edge or surface? I selected surface. Now I'm going to select my second point somewhere here on the incisor, on triangle surface again. Right, now I have to give it a 0.3. तो मैं यहाँ पे दे रही हूँ इसको point. So once all my points are set, अगर मैं यहाँ पे जहाँ पे मैंने 0.1 दिया था वहाँ पे आप ये green part देख रहे हैं जो create हो रहा है, मेरा sketch something similar इस region में ऐसे कुछ create होगा. Now I'm going to hit apply. So when I hit apply, एक sketch 1 करके entity form हुआ है. So you can see it in red color. I'm just going to cancel the new sketch option, go to sketch 1, उसके properties में जाऊंगी, उसके properties में जाके उसका cell count increase करूंगी. जो sketch visualization option होता है उसमें cell count होता है. So I want to increase the number of cells. So I'm going to do 100 by 100 का grid बनाऊंगी. So now when I do that, आपको दिखा रहेगा कि ये कुछ ऐसा आया है sketch. If you see, it's going diagonal. Now what I'll do is I will now go to align, interactive rotate, and set my sketch. So I would want to increase it from this point. Why I'm choosing this as my center of axis is because यहाँ पे वो काफी dip जा रहा है, यहाँ पे वो ठीक ठाक है. So I'm just going to increase it somewhere here. Once I've done with that, I am going to now set it somewhere here. और मैं अभी इसके रिस्पेक्ट पे इसको थोड़ा इंक्रीज करूंगी. Parinit, why is there so much of anterior open bite in this in these models when we have simulated the movements for the correction? एक सेकेंड मैम. हाँ, हमने तो मैक्सिला और मैंडिबल की पोजीशन इतनी अच्छी कर ली थी कि बाइट अच्छी आ रही थी. मैम मे बी ये कास्ट का इम्प्रेशन ऐसा होगा बिकॉज अगर हम मैंडिबल के टूथ के हिसाब से देखें तो उसके हिसाब से तो बराबर आ रहा था. इफ दिस इज माय रीलो पार्ट. मैंडिबल रोटेटेड वाला नहीं लिया एक्चुअली कास्ट. ये रोटेटेड वाला है. मैक्सिलर रोटेशन किया. नहीं ये रोटेट किया, इसको मूव किया था इसके साथ. मूव करने के बाद तो ये पोजीशन नहीं आनी चाहिए थी इतनी ओपनिंग बाइट में. एक सेकेंड मैम. पोजीशन मैंडिबल कास्ट. तो आपको डिफरेंस दिखा? मैंने ये जो ओरिजिनल चालू किया है बंद किया. So in case ऐसा आपको लगता है कि आपका मैंडिबल करेक्ट है and you know you're facing a problem with your cast, at this juncture what you can do is you can go back to mimics. मैं आपको बताती हूँ. I'm just closing that window. Ma'am, again this session is coming to an end and less than 1 minute is remaining. तो मैं क्या करती हूँ, मैं ये session end करती हूँ, आप फिर से join in कर लीजिए, तब तक मैं mimics चालू कर देती हूँ इसका and I'll let you know कि तब ऐसा अगर issue आता है तो आप क्या कर सकते हैं. ठीक है? ठीक है. हाँ.